Hey guys, welcome back. So our today topic of discussion is brain, its parts and function, right? So as we know that we have two type of nervous system in our body, central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system further divided into two parts, brain and spinal cord. So in this video lecture we will discuss brain only, right? So let's begin. As we know that we have three parts in brain, right? Three types of regions, or we can say in brain, right? Forebrain, midbrain and hindbrain. So these parts further divided into different parts or sub parts in the body, in the brain, sorry. So first is forebrain, right, which is further divided into olfactory lobe is the part of forebrain, cerebrum, diencephalon, hypothalamus, thalamus and epithalamus, which is present here, right. So next is hindbrain, which includes cerebellum, medulla oblongata. Here is cerebellum, medulla oblongata and pons, right. And the third is midbrain, which includes tectum and tegmentum. Tectum and tegmentum present just here, right, just above this pituitary gland here, right. So and next is there is different parts of brain. So this is thalamus. Just beneath the thalamus is the hypothalamus, right. So this is olfactory lobe or olfactory bulb here, and this is middle brain, pons, medulla oblongata. This tree includes the brainstem, right. So here is cerebrum, as cerebrum is the largest part of the brain, right. And here is the corpus callosum, pineal gland, cerebral cortex, cerebellum. Second largest part of the brain is cerebellum, and here is the pituitary gland. So इसके अलावा इसमें चार lobes होती हैं. Frontal lobe, here is the frontal lobe which is present in front, temporal lobe here, parietal lobe and occipital lobe, right. So ये थोड़ा सा ओवरव्यू है ब्रेन का, राइट. और क्या होता है कि इसका मेन पॉइंट इसका क्या है कि इसमें दो ग्लैड्स प्रेजेंट होती हैं, राइट. सो पिट्यूटरी ग्लैड एंड पीनियल ग्लैड. So pituitary gland is means this gland is very much important, right. So it is also known as master gland, as it is responsible for the various purposes in the body, as it stimulates the adrenal gland, thyroid gland and help in reproduction, right. As this gland secrete hormones in the bloodstream and stimulates the various function in the body, right. And here is the pineal gland, which have only function to work with sleeping patterns in the body, right. So as we know that central nervous system includes two parts, brain and spinal cord. So central nervous system control the activities of body, right. इट्स नर्व टिश्यू, इसमें जो है नर्व टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं. तो द ब्रेन स्टेम इज कंटिन्यूस विद स्पाइनल कोड. दिस ब्रेन स्टेम इज कंटिन्यूस विद स्पाइनल कोड, राइट. सो cerebrum is the largest part of brain. This cerebrum is the largest part of brain, right. So as we have three types of region or three parts of brain which further subdivides into different parts. So first is forebrain. Here is the forebrain. This, so first is olfactory lobes, right. Here olfactory lobes. तो इसमें क्या है, ये क्लब शेप स्ट्रक्चर है प्रेजेंट एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन. लेंथ ऑफ इट डिपेंड ऑन द सेंस ऑफ स्मेल. मीन्स कि हम कितना सेंस कर सकते हैं स्मेल को, हमारे में कितनी कैपेसिटी है सेंस करने की स्मेल को, वो इसकी ऑल्फैक्टरी लॉब्स की लेंथ पे डिपेंड करता है, राइट. नेक्स्ट है सेरिब्रम. एज सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शन, स्पीच, थॉट एंड मेमोरी, राइट. हियर इज द सेरिब्रम, राइट. तो ये क्या करता है, हमारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है. मींस जो एक्शन हमारे कंट्रोल में होते हैं, राइट, उनको कंट्रोल करता है, राइट. ऑटोमेटिकली जो एक्शन नहीं होते हैं हमसे, जैसे हमारी आईलिड्स हम पलक के झपकते हैं, वो हमारा इनवॉलंटरी एक्शन है,
राइट। वॉलंटरी है, हमने जैसे हम अपनी आर्म्स को मूव कर रहे हैं, राइट, वो हमारी मर्ज़ी से हो रहा है, खुद ब खुद थोड़ी ना हो रही है, राइट। सो वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। और ये फर्दर 2 हाफ्स में डिवाइड होता है, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। एज राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल द वॉलंटरी लिम्ब मूवमेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, राइट। ये अपोजिटली वर्क करता है कि जो राइट हेमिस्फीयर होता है वो लेफ़्ट साइड जो लिम्ब मूवमेंट्स होती हैं वो लेफ़्ट साइड का पोर्शन हैंडल करता है, उसको कंट्रोल करता है, राइट। और जो लेफ़्ट हेमिस्फीयर होता है वो राइट साइड लिम्ब मूवमेंट्स कंट्रोल करता है, राइट। सो ईच हेमिस्फीयर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 लॉब्स, राइट। ध्यान रहे ये हम फोरब्रेन में पढ़ रहे हैं, राइट। सो ईच हेमिस्फीयर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 लॉब्स, राइट, विच आर इंटरकनेक्टेड। फोरब्रेन में पढ़ रहे हैं और ये सेरिब्रम में आता है, राइट। सो विच आर इंटरकनेक्टेड, फ्रंटल लॉब, एज दिस इज फ्रंटल लॉब, हियर इज द फ्रंटल लॉब, राइट। So it is located in the front of brain, responsible for voluntary actions, responsible for organizational skills such as speech, behavior, mood and memory, right। हमारी स्पीच पे डिपेंड करता है, इसकी वजह से हमारी स्पीच कंट्रोल ये रिस्पॉन्सिबल होता है, बिहेवियर, हमारा मूड कैसा है, हमारी मेमोरी कैसी है। एज नेक्स्ट इज parietal lobe, right, this is parietal lobe, as it is located behind the frontal here, और ये behind the frontal and in the front of occipital के front में। So it processes the sensory information such as temperature, pain, taste, touch, information about numbers की information देता है, attentiveness to the position of one's body part कि हमारी बॉडी कितनी अलर्ट है, राइट। नेक्स्ट इज टेम्पोरल लोब, एज टेम्पोरल लोब इज प्रेजेंट हियर, राइट। सो इट इज़ लोकेटेड ऑन द ईच साइड ऑफ ब्रेन। ईच साइड ऑफ ब्रेन मतलब जैसे कि ये हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन है, राइट। सो ये ट्रांसवर्स सेक्शन हुआ तो ये इस तरफ भी प्रेजेंट होगी ब्रेन के और इस तरफ भी, राइट। जब हम कट करते हैं तो ये दोनों साइड आ जाती है, राइट, ईच साइड ऑफ ब्रेन। यहाँ भी प्रेजेंट होगी, जो इसका दूसरा हिस्सा होगा वहाँ भी प्रेजेंट होगी, राइट। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, ऑडिटरी और हेयरिंग, राइट, इंफॉर्मेशन, स्पीच एंड लैंग्वेज फंक्शन। ये हमारा कौन कंट्रोल करता है, टेम्पोरल लोब, राइट। सो नेक्स्ट इज ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब, दिस इज बिहाइंड, राइट, लोकेटेड इन द बैक ऑफ द ब्रेन, रिसीव विजुअल स्टिमुलेशन, राइट। सो विजुअल स्टिमुलेशन हमें देखने में, राइट, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑसिपिटल लोब की। नेक्स्ट इज डायनसेफलोन, एज डायनसेफलोन कंटेन, ये एपिथैलेमस यहाँ प्रेजेंट होता है, राइट। सो यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे टेक्टम एंड टेगमेंटम भी यहाँ कहीं प्रेजेंट होता है और एपिथैलेमस यहाँ प्रेजेंट होता है। तो डायनसेफलोन क्या कंटेन करता है, इसमें थैलेमस आता है, एपिथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। एज एपिथैलेमस इज नॉन नर्वस पार्ट सिक्रीट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, राइट। सो जैसे कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारी जो होती है ब्रेन के प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती है, राइट, मीन्स इसके आउटर कवरिंग जो उसकी प्रोटेक्शन क्या 3-4 चीज़ें होती हैं जो उसकी प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं ब्रेन की, जैसे कि स्कल होगी, स्किन आउटर लेयर, उसके स्कल, मेनिंजेस, राइट, एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो नेक्स्ट इज थैलेमस, एज थैलेमस डायरेक्ट सेंसरी इम्पल्स, हियर इज द थैलेमस, राइट। Thalamus directs sensory impulse from the lower part of the brain and spinal cord. It is responsible for pain, temperature, touch and pressure, right. So next is, here is hypothalamus. So hypothalamus is located just beneath the thalamus, right. So it is responsible for thermoregulation, center for temperature regulation, हंगर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एपेटाइट्स दैट द सेंटर टू कंट्रोल डिज़ायर ऑफ फूड, कंट्रोल द स्लीपिंग पैटर्न्स एंड wakefulness, secrete neurohormone which control the secretion of anterior pituitary gland hormone, right. So एज जैसे कि जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके बिल्कुल करीब प्रेजेंट होती है, राइट, इसके हाइपोथैलेमस के नीचे यहाँ पे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट। सो इसकी सिक्रीशन को भी कंट्रोल में रखता है और ये क्या हमारे सेक्सुअल डिज़ायर्स को भी कंट्रोल करता है, ये हाइपोथैलेमस, राइट।
So next is midbrain, right? Here is the midbrain, right? यहाँ पे टेक्टम एंड टेगमेंटम प्रेजेंट होते हैं, तो मिड ब्रेन को हम मेसेंसेफेलॉन भी बोलते हैं, राइट? और ये कंपोज होता है टेक्टम एंड टेगमेंटम से, राइट? तो वेरी स्मॉल कंस्ट्रक्टेड पोर्शन ऑफ ब्रेन कवर्ड बाय सेरिब्रम, ये ऊपर सेरिब्रम है ना, तो कवर बाय सेरिब्रम, राइट? सो इट्स मेन फंक्शन इन्वॉल्व्स हियरिंग, विजन, eye movements and body movement, right? And it is composed of tectum and tegmentum. And the last one is hindbrain, right? As hindbrain includes cerebellum. Cerebellum is a leaf-like structure, right? So it is the second largest part of brain, located back of the skull, right? The gray matter of cerebellum is called cerebral cortex, right? This is cerebral cortex, this is cerebrum present back of the brain. This is front side and this is back side, so it is present in the back of the brain, right? So this its function is it control posture, maintenance of muscle tone, coordinate voluntary muscular activities and equilibrium of body, right? Next step, pons. पॉनस किसके लिए? सुपीरियर ऑफ मेड्यूला में प्रेजेंट होता है एंड एंटीरियर टू सेरिब्रम, सेरिब्रम पीछे होता है और पॉनस यहाँ पे आगे प्रेजेंट होता है, राइट? सो इट्स फंक्शन इट फॉर्म ब्रिज बिटवीन मिड ब्रेन एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, राइट? ये क्या करती है? आई मसल कंट्रोल करती है, आई मसल कंट्रोल, राइट? रिस्पॉन्सिबल होती है उसके लिए, फेशियल मसल स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा विच इज़ द लोएस्ट पार्ट प्रेजेंट, राइट? एंड इट्स फंक्शन इज इट कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री मीन्स जो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट? जैसे हमारा हार्ट बीट है वो ऑटोमेटिकली होता है, उसको कंट्रोल करता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, राइट? ब्लड प्रेशर हमारा, रेस्पिरेशन, तो जो भी हमारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है, राइट? सो here is the this is the information about basic information about brain, right? So in this today lecture this is all about the brain, right? So if you like the video, please subscribe, share and like. Thank you.